हेलो एवरीवन। आज इस सेशन में हम बात करेंगे डिटर्मिनर्स पार्ट 1। चलिए शुरू करते हैं। इंडेक्स पढ़ लेते हैं। इन दिस सेशन वी विल डिस्कस इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिटर्मिनर्स, ग्रुप ए डिटर्मिनर्स, ग्रुप बी डिटर्मिनर्स। आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। डिस्क्लेमर पढ़ लेते हैं। द images used in a slide deck are for educational purposes only. We respect the intellectual property rights of the original creators and owners of these images. If you are the owner of any of the images used in this deck and have any concerns or issues, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the images. आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। Definition: Determiners are words placed before a noun to make it clear what the noun refers to. तो डिटर्मिनर्स ऐसे शब्द हैं जिनको नाउन के से पहले लगाया जाता है ताकि ये बात क्लियर हो जाए कि नाउन किस चीज़ को रेफर कर रहा है। They can denote specifics like quantity or position or can indicate definiteness or indefiniteness of the noun. तो ये डिनोट करते हैं, ये कर सकते हैं, सूचित कर सकते हैं क्वांटिटी को, पोजीशन को, डेफिनेटनेस को, इनडेफिनेटनेस को नाउन के, कि नाउन डेफिनेट है कैटेगरी का है, इनडेफिनेट कैटेगरी का है, पोजीशन को एक्सप्रेस कर रहा है, क्वांटिटी को। टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स: आर्टिकल्स, डिमोन्स्ट्रेटिव्स, possessives, quantifiers, numbers, distributives, interrogative determiners, डिफरेंस डिटर्मिनर्स। आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। आर्टिकल्स, द मोस्ट कॉमन डिटर्मिनर्स दे कैन बी डेफिनेट आर्टिकल द रेफर्स टू अ स्पेसिफिक नाउन और नाउन्स। ये रेफर करता है किसी स्पेसिफिक नाउन को या फिर नाउन्स को, एक या एक से ज्यादा नाउन्स को। जब ये किसी नाउन से पहले लगाया जाता है तो वो नाउन स्पेसिफिक हो जाता है, डेफिनेट हो जाता है, इसकी आइडेंटिटी डेफिनेट हो जाती है। एग्जाम्पल: द डॉग इज बार्किंग। So here we have put the before dog. So it means we are not talking about any dog. We are talking about a specific dog, which is the barking. Indefinite articles a or n refers to a non-specific noun. So जब भी हम an article किसी भी noun से पहले लगाते हैं तो वो noun कैसा होता है? नॉन स्पेसिफिक। उसकी आइडेंटिटी कैसी होती है? नॉन। एग्जाम्पल: शी इज अ टीचर। इट इज नॉट स्पेसिफाइड विच टीचर, simply a teacher. Demonstratives, these point to and identify a noun or a pronoun. They include this, that, these, those. तो demonstratives क्या होते हैं? This, that, these, those. ये point out करने के लिए यूज किए जाते हैं। Example: this book is mine. I like those shoes. So this book is mine, which means I'm not talking about the book which is far from me. I'm talking about the book which is near to me. And these or those are used for plural nouns, whereas this and that are used with singular nouns. आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। Possessives indicate ownership और association. Possessive determinants क्या एक्सप्रेस करते हैं? ओनरशिप को, एसोसिएशन को। Examples: my, your, his, her, its, are, their. तो my car, your car, his car, इस तरह से ये पोजीशन को एक्सप्रेस करते हैं। सेंटेंस: that's my car. तो it is not your car, it is my car. Quantifiers provide information about the number of items or amount of something.
तो क्वांटिफायर्स क्या होते हैं? जो नाउन की संख्या, उसकी मात्रा बताते हैं। सम कॉमन क्वांटिफायर्स आर सम, एनी, मैनी, मच, a lot of, a few, a little, several, enough, all, both, half. So these are common quantifiers which are used to express number and amount. Example: I have several pens. She ate some cake. So here, cake is uncountable noun, and we have put some before it. Indefinite amount we are talking about. And in the first example, we are talking about several pens, indefinite number. आशा करते हैं आप समझ चुके हैं. Numbers, these are also considered determiners when they specify the quantity of nouns. Examples: I have two cats. So 2 is a number. Distributives refer to individual members of a group. Examples include each, every, either, neither. Sentence: each student was given a book. So distributive determiners, what they do, they refer to individual members of a group one by one, एक एक करके. So sentence है each student was given a book. प्रत्येक स्टूडेंट को क्या दी गई? एक बुक दी गई. So जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका एक ग्रुप है, उनमें से हर प्रत्येक स्टूडेंट को एक बुक दी गई. डिस्ट्रीब्यूशन एक्सप्रेस किया जा रहा है. Interrogative determiners used with nouns to ask questions. Example: which, what, whose. तो इंटेरोगेटिव डिटर्मिनर्स का यूज हम कब करते हैं? क्वेश्चंस को पूछने के लिए, जैसे विच हो गया, व्हाट हो गया, हुज हो गया, इस तरह से. एग्जाम्पल: हुज पेन इज दिस. किसका पेन है ये? डिफरेंस डिटर्मिनर्स यूज टू एक्सप्रेस कंट्रास्ट. एग्जाम्पल: अदर, अनदर. सेंटेंस: आई डोंट लाइक दिस शर्ट, डू यू हैव अनदर वन. तो मुझे ये शर्ट पसंद नहीं है, क्या तुम्हारे पास कोई दूसरी शर्ट है? तो ये क्या एक्सप्रेस कर रहा है? कंट्रास्ट को, किसी शर्ट से किसी दूसरी शर्ट को रेफर किया जा रहा है. आशा करते हैं आप समझ चुके हैं. So here we are talking about characteristics of determiners. They add detail or clarity. तो ये क्या ऐड करते हैं? डिटेल को, क्लैरिटी को. इससे हमें क्लैरिटी मिलती है. Determiners provide specific information about the noun they accompany, जिनके साथ वो आते हैं. For instance, a dog is a general statement, whereas the dog specifies a particular dog. तो जैसे ही हमने आर्टिकल ए एन पुट किया, ये भी एक डिटर्मिनर है. डॉग से पहले एक जनरल स्टेटमेंट बन गई, कोई भी डॉग हो सकता है. जबकि हमने जब आर्टिकल द पुट किया डॉग से पहले, तो यहाँ पे स्पेसिफाई हो रहा है कोई पर्टिकुलर डॉग. पोजीशन, पोजीशंस की बात कर लेते हैं. डिटर्मिनर्स की अपनी पोजीशंस भी होती है. डिटर्मिनर्स आर टिपिकली प्लेस बिफोर द नाउन और द एडजेक्टिव दैट मॉडिफाइज द नाउन. तो डिटर्मिनर्स का यूज हम करते हैं नाउन से पहले या फिर उस एडजेक्टिव से पहले जो कि मॉडिफाई करता है किसी नाउन को. जैसे कि हमने बोला अ बॉय, तो बॉय से पहले हमने क्या यूज कर लिया? ए आर्टिकल, जो कि एक डिटर्मिनर है. इसी तरीके से हम कह सकते हैं अ ब्रेव बॉय. सो इस बार क्या हो रहा है? ब्रेव एक एडजेक्टिव है जिससे पहले हमने डिटर्मिनर यूज कर लिया है. तो पोजीशन क्या हुई? आर्टिकल, और यू कैन से डिटर्मिनर्स प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, और डिटर्मिनर प्लस नाउन, इस तरह से. फॉर इंस्टेंस, इन द फ्रेज दोज ब्यूटीफुल शूज, दोज इज द डिटर्मिनर, ब्यूटीफुल इज एन एडजेक्टिव एंड शूज इज अ नाउन. तो डिटर्मिनर प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन. दे नेवर स्टैंड अलोन, ये कभी भी अकेले नहीं स्टैंड करते. डिटर्मिनर्स कैन नॉट स्टैंड अलोन, दे ऑलवेज प्रीसीड नाउन. तो डिटर्मिनर्स का यूज ही हम करते हैं नाउन्स को रेफर करने के लिए, उनकी क्वांटिटी, उनकी अमाउंट को रेफर करने के लिए.
सो डिटर्मिनर्स का यूज हम बिना नाउन के नहीं कर सकते। जैसे कि आप कभी ये नहीं बोल सकते माई, सिंपली माई, आपको बोलना पड़ेगा माई कार, माई शूज, इस तरह से। एग्रीमेंट, determinants must agree in number and sometimes in gender with the nouns they modify. So कभी कभी क्या होता है, डिटर्मिनर्स एग्री करते हैं नंबर में और कभी कभी जेंडर में विद द नाउन्स दे मॉडिफाई, जिन नाउन्स को मॉडिफाई करते हैं। फॉर इंस्टेंस, इन इंग्लिश यू वुड से दिस एप्पल बट दीज एप्पल्स। सो यहाँ क्या हुआ, नंबर को रेफर किया जा रहा है। तो एप्पल की अगर बात की जा रही है तो हमने यूज कर लिया दिस का, और अगर एक से ज्यादा एप्पल की बात की जा रही है तो हमने यूज कर लिया दीज का। सो ये डिफरेंस हो गया नंबर का। यूसेज, understanding when and how to use determiners can significantly improve clarity in both written and spoken English. So ये समझना कि कब और कैसे हम डिटर्मिनर्स को यूज करें, ये क्या कर सकता है, ये इंप्रूव कर सकता है क्लैरिटी हमारी दोनों चीजों में, चाहे हमारी रिटन इंग्लिश हो या फिर स्पोकन इंग्लिश हो। फॉर इंस्टेंस, सेइंग आई सो बर्ड्स इज डिफरेंट फ्रॉम आई सो द बर्ड्स। So I saw birds refers to general. I saw the birds means specific birds. The former suggests you saw some birds, but not specific ones again. So I saw birds क्या रेफर कर रहा है, not specific birds. The latter implies you saw particular birds that both the speaker and listener are aware of. तो जब भी कोई नाउन पर्टिकुलर हो जाता है, डेफिनेट हो जाता है, तो लिसनर और स्पीकर दोनों को नोन होता है, अवेयर होता है। ग्रुप ए डिटर्मिनर्स, आर्टिकल्स, possessive determiners, डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स। सो हमने डिटर्मिनर्स को कैटेगराइज किया गया है, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। तो इन ग्रुप ए you will see articles, possessive, it means my, your, his, her, demonstrative, this, that, these, those। तो ये सारे डिटर्मिनर्स आते हैं ग्रुप ए में। आर्टिकल्स, these are perhaps the most fundamental determinants in English। Definite article the, indefinite article a and n, used to specify the definiteness of the noun। इनका यूज किस लिए किया जाता है, डेफिनेटनेस को रेफर करने के लिए। द इज यूज व्हेन टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिक आइटम्स दैट बोथ द स्पीकर एंड लिसनर आर अवेयर ऑफ। द का यूज हम कब करते हैं, जब किसी स्पेसिफिक आइटम, किसी नाउन को स्पेसिफिक रेफर करना हो जो कि स्पीकर और लिसनर दोनों को पता हो। जैसे कि मान लीजिए आपके घर में एक टीवी है और आप अपनी मदर से कह रहे हैं वेयर इज द रिमोट। इट मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट द स्पेसिफिक रिमोट ऑफ दैट पर्टिकुलर टीवी, not of any TV। A and N are used when the exact item is not specified। So A and N का यूज आप कब करते हैं, जब जिस आइटम की आप बात कर रहे हैं वो स्पेसिफाइड नहीं है, जनरल है या फिर वन ऑफ मैनी है, इस तरह से। जैसे कि आई कैन ड्राइव अ कार, इट मीन्स आई कैन ड्राइव एनी कार, नॉट स्पेसिफाइड विच कार। एंड इफ आई से आई हैव अ कार, इट मीन्स पर्टिकुलर बट नॉट स्पेसिफिक। Possessive determiners, these indicate ownership or association। Example, my, your, his, her, its, are, their show ownership or association, agree in number and sometimes gender with the nouns they modify, are different from possessive pronouns mine, yours, his, hers, its, ours, theirs। So possessive pronouns different हैं, possessive determiners different हैं। Possessive pronouns में आते हैं mine, तो my plus noun becomes mine, that's why mine is a pronoun। Your plus noun becomes yours, his plus noun become his, her plus noun become hers, इस तरह से। So they agree in number and sometimes gender with the nouns they modify। नंबर में भी एग्री करते हैं और जेंडर में भी एग्री करते हैं।
Demonstrative determiners. These identify and point to nouns. ये nouns को point करते हैं. Example: this that for singular nouns, these those for plural nouns. Point out and identify nouns. This and these refer to items close to the speaker in location or time. तो दिस और दैट का दिस और दीज का यूज हम कब करते हैं? उन आइटम्स को रेफर करने के लिए जो कि स्पीकर से क्लोज है, पास है, चाहे वो लोकेशन में हो या टाइम में हो. दैट और दोस्त का यूज हम कब करते हैं? रेफर्स टू आइटम्स फार्दर अवे फ्रॉम द स्पीकर, जब दूर हो. दैट कार, दोज कार्स, दिस कार, दीज कार्स, इस तरह से. ईच ऑफ दीज डिटरमिनर्स gives additional information about the noun they precede, specifying whether it is known or unknown to the listener, its proximity or its relationship, ownership. तो जितने भी डिटरमिनर्स हैं ये एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं हमें अबाउट द नाउन दे प्रोसीड, जिसको वो प्रोसीड करते हैं. स्पेसिफाई करते हैं वेदर इट इज नॉन और अननोन, कि ये नॉन है और अननोन है लिसनर के लिए. आशा करते हैं आप समझ चुके हैं. ग्रुप बी डिटरमिनर्स. So now we are talking about group B determiners. In group B determiners, you will find quantifiers, interrogative determiners, distributive determiners. आशा करते हैं आप समझ चुके हैं. Quantifiers. These provide information about the number or quantity. Example: some, any, much, many, few, little, a lot of, several, enough, all, both, half, each, every, either, neither. So these are quantifiers. Some of them refers to number and some of them refers to quantity. They express quantity or amount in relation to nouns. They can be used with both countable, example cats, books, and uncountable nouns, example water, advice. Though some quantifiers are specific to one or the other. तो ये दोनों तरह के नाउन के साथ यूज किए जा सकते हैं, चाहे वो काउंटेबल नाउन हो जैसे कि कैट्स और बुक्स, या फिर वो अनकाउंटेबल नाउन हो जैसे कि वाटर और एडवाइस. हालांकि जो कुछ क्वांटिफायर्स हैं वो काउंटेबल नाउन्स के लिए ही बने हैं और कुछ ऐसे हैं जो केवल अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए ही बने हैं. जैसे कि मच है. मच का यूज हम बुक के साथ नहीं कर सकते, मच बुक, बट हम यूज कर सकते हैं मैनी का मैनी बुक्स. इसी तरीके से मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है, उसके साथ हम मैनी का यूज नहीं कर सकते, मैनी मिल्क, हमें यूज करना पड़ेगा मच मिल्क. आशा करते हैं आप समझ चुके हैं. एग्जाम्पल्स: वी यूज मैनी फॉर काउंटेबल नाउन्स लाइक मैनी एप्पल्स. वी यूज मच फॉर अनकाउंटेबल नाउन्स लाइक मच वाटर. आशा करते हैं आप समझ चुके हैं. Interrogative determiners. These are used with noun to ask questions. So इनका यूज हम कब करते हैं? जब हमें क्वेश्चंस पूछने हो. एग्जाम्पल: which, what, whose. These determiners introduce questions. ये इंट्रोड्यूस करते हैं क्वेश्चंस को. Which and what can be used to ask about things or people. So which और what का यूज आप कर सकते हैं things और people दोनों को रेफर करने के लिए. जैसे कि which song do you like and what song do you like. What is your father? People. Which is your father? People. However, which is often used when there is a specific limited set being referred to. हालांकि which का यूज हम अक्सर तब करते हैं जब limited set being referred to यानी लिमिटेड चीजों के बारे में बात की जा रही हो. जैसे कि आपका कोई फ्रेंड है, इन जनरल वो आपसे पूछ रहा है कि आपको कौन सा सॉन्ग पसंद है, तो वो कह सकता है व्हाट सॉन्ग डू यू लाइक. बट मान लीजिए आपका एक मोबाइल फोन है, उसमें एक प्लेलिस्ट है सॉन्ग्स की, उसमें से रेफर किया जा रहा है, तो वो पूछ सकता है विच सॉन्ग डू यू लाइक. तो लिमिटेड हो गए सॉन्ग्स. आशा करते हैं आप समझ चुके हैं.
Example, which book out of these do you want? So limited ones. What book do you want in general without specifying a set? Whose is used to inquire about possession. So whose का यूज हम तब करते हैं possession का इंक्वायर करना हो, हमें जानना हो. Examples, whose coat is this? किसका कोट है ये? आशा करते हैं आप समझ चुके हैं. Group B determiners. Distributed determiners. These refers to members of a group individually rather than collectively. So ग्रुप में जितने मेंबर्स हैं उनको ये इंडिविजुअली रेफर करता है, ना कि कलेक्टिवली. Examples, each, every, either, neither. These determiners are used to refer to members of a group individually. Each refers to individual member of a group, emphasizing one at a time. तो each का काम करता है वन बाय वन रेफर करता है, एक एक करके, इस तरह से. जैसे कि each student has to come on time, यानी प्रत्येक स्टूडेंट को. कलेक्टिवली हम रेफर नहीं कर रहे, एक एक को पॉइंट आउट किया जा रहा है. Examples, each student received a prize. It means प्रत्येक स्टूडेंट. Every also refers to all members of a group but sees them as a collective. Every भी रेफर करता है all members को ग्रुप के, but sees them as a collective. Collectively देखता है चीजों को. Example, every student knows the rule. तो अगेन प्रत्येक स्टूडेंट को क्या पता है? रूल पता है. लेकिन यहाँ पे क्या किया जा रहा है? यहाँ पे हम वन बाय वन पॉइंट आउट नहीं कर रहे, एम्फेसाइज नहीं कर रहे, हम इन जनरल एक्सप्रेस कर रहे हैं. तो एक बात आपको ध्यान रखनी है, इन जनरल जब आपको एक्सप्रेस करना हो किसी नाउन को तो आप यूज करें एवरी का. और अगर लिमिटेड चीजें हो, लिमिटेड थिंग्स हो, उस केस में ईच का यूज करें. ये ध्यान रखें. आशा करते हैं आप समझ चुके हैं. ईदर एंड नीदर आर यूज स्पेसिफिकली विद टू आइटम्स. तो ईदर और नीदर का यूज हम कब करते हैं? दो चीजों के साथ. ईदर रेफर्स टू वन और द अदर इन अ पॉजिटिव सेंस. ईदर क्या रेफर करता है? या तो ये या तो वो, इन अ पॉजिटिव सेंस. एंड नीदर इंडिकेट्स नॉट द फर्स्ट वन नॉट द सेकंड वन इन अ नेगेटिव सेंस. सो ना तो पहला वाला ना ही दूसरा वाला, ये नेगेटिव सेंस में एक्सप्रेस करता है. एग्जाम्पल्स, यू कैन हैव ईदर चॉकलेट और वनीला. इट मीन्स आइदर चॉकलेट और वनीला, यू हैव अ चॉइस. नीदर ऑप्शन इज अपीलिंग टू मी. तो कोई दो ऑप्शन है, उनमें से दोनों में से कोई भी ऑप्शन मेरे लिए क्या नहीं है? अपीलिंग नहीं है, अट्रैक्टिव नहीं है, मुझे लुभा नहीं रहा है. आशा करते हैं आप समझ चुके हैं. आई होप आपने इस सेशन से काफी कुछ सीखा. फिर से किसी अन्य सेशन में आपसे मुलाकात करेंगे. तब तक के लिए धन्यवाद.